Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very special guest at our Sama Podcast, and when I talk about him, of course he's a great personality. He's a very dynamic, outstanding and well-known, highly esteemed personality. When I talk about Pakistan's medical field, obviously Pakistan's medical field and industry is striving and thriving for the last many years. But yes, he has made his name in the medical field. He always wanted to be a doctor since childhood. And now he is one of the top most best surgeons of Pakistan, recognized as the best cardiac surgeon of Pakistan. Yes, I'm talking about Dr. Abdul Bari Khan, who is also the founding president of Indus Hospital, which was established by him as his volunteers' effort. And due to his volunteers' efforts, he was also awarded Hilal Imtiaz and Tamga Imtiaz in serving the humanity at large scale. If I talk about Indus Hospital, then Indus Hospital is one of the most, I would say, a unique hospital, which is purely running on funded-based donations, zakat and sadqas, and treating the patients entirely overall Pakistan. Annually, if we talk, to annually the rate of the patients being treated by Indus Hospital is 6 million. Can you guys imagine? Yes, 6 million is the number which is being treated by Indus Hospital, and it was established in 2007, and it's been 16 years. It's running successfully overall Pakistan. But yes, it has its 10 hospitals. Indus Hospital has expanded to 10 other branches, 10 other hospitals that are running successfully in Pakistan. And when we talk about Punjab, then in Punjab, they are completing their decade. They are completing almost 10 years of successful operations. And Indus Hospital is just doing amazing. I'm so impressed by his efforts. I'm so impressed that he is one of the best cardiac surgeons of Pakistan. And we would like to ask him a lot, much more information, which is much needed to be discussed here at Sama Podcast. Let's welcome him. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. कैसे सर आप? Alhamdulillah, बिल्कुल आप ठीक हैं? Thank you. First of all, thank you for being here and taking out your precious time. We really wanted to have a doctor today because we want to know a lot since, नया ज़माना आ गया है, इतनी चीज़ें आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज़ हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द यंगस्टर्स, और मतलब तो मुझे लगता था कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है अब समा पॉडकास्ट को. समा पॉडकास्ट वुड लाइक कि ऑडियंस का इंगेज हो आप. थैंक यू. सर, मैं जब आपसे पूछती हूँ कि आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तो आपको बचपन से ही शौक था डॉक्टर बनने का? बिल्कुल, बचपन से ही शौक था. और सिर्फ ये शौक थी कि डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है लोगों की खिदमत करनी है. बिल्कुल, ये हमेशा से डे वन से. तो मुझे ये बताएं कि लोगों की खिदमत करना और डॉक्टर बनने में देयर इज अ डिफरेंस. हर डॉक्टर लोगों की खिदमत नहीं कर रहा. आपके दिमाग में ये कैसे आया? मतलब योर पेरेंट्स वर सर्विंग द ह्यूमैनिटी. कोई फैमिली में ऐसा था पहले से? नहीं, फैमिली में ऐसा कोई नहीं था. मैं हमेशा से था, लेकिन बट आई वाज फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन अ रिलीजियस फैमिली. तो मेरे पेरेंट्स जो है ना तहज्जुद गुज़ार इंसान थे. मेरे वालिद साहब जो है ना वो दुआ जो है ना बावास करा करते थे अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम लेकर, तो अपने बच्चों के नाम लेकर भी. और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सिर्फ ही की दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना, ना शोहरत के लिए, ना इज़्ज़त के लिए, ना पैसे के लिए. तो वही उनकी दुआएं कबूल हुई हैं, तो आज हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं. बेशक आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से यू आर हियर टुडे, सर्विंग द ह्यूमैनिटी. अदरवाइज हर किसी को ये चीज़ तौफीक भी नहीं होती. ऑनेस्टली इफ वी टॉक अबाउट, जब मैं बात करती हूँ आपके बच्चों की माशाल्लाह, तो आपने अपने बच्चों को जिस तरह से ग्रूम किया है, यू नेवर लेट देम यूज़ योर नेम. मतलब वो क्या एक स्टोरी है, थोड़ा मुझे बताएं. देखिए, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि बच्चों के, क्यों हमारे ज़माने में यही होता था कि जो डॉक्टर के बच्चे या किसी के बच्चे वो सबको पता होता था, और उसके लिए अनड्यू उनको एडवांटेजेस भी मिलते थे. तो मैंने बच्चों को हमेशा से कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ था, तो आपने भी अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है. और मेरे से ज़्यादा बच्चे जो थे ना वो मुझे कहा करते, क्योंकि मेरे बच्चे आगा खान से ग्रेजुएट का बड़ा बेटा एक ने डाव से किया, जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ था. तो मुझे कहा करते थे आप किसी को बताएंगे नहीं कि हम आपके बच्चे हैं. तो कहीं अपने बलबूते पे वो लोग वहाँ पहुँचे, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जगह पहुँचा दिया जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसकी. सो आई वांट टू नो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? आप खुद कैसे थे बचपन में? वर यू अ नॉटी स्टूडेंट और अ सीरियस और अ सोबर स्टूडेंट? आई वाज स्टूडियस, सोबर स्टूडेंट हमेशा से. और आपकी ज़िंदगी में जो है ना आपके पेरेंट्स के अलावा आपके टीचर्स का बड़ा रोल होता है. तो मैं कुछ टीचर्स का भी रोल बड़ा था.
मैंने डार मेडिकल कॉलेज से जिसके साथ सिविल हॉस्पिटल अटैच था, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है। और उस ज़माने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के बुरे हालात होते थे और हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता था, हाँ कोई जी, अपना घर बेच के आता बिल्कुल था। बिल्कुल। और बहुत सारे जवान औलाद के लिए वालिदैन को ये कहते सुना कि इसको मर जाने दें, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूँ 8 को बचा लूँ घर पे। तो तब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जहाँ पर हम लोग मरीज़ों को दवाइयाँ दिया करते थे। उस ज़माने में ब्लड का जो सोर्स होता था वो प्रोफेशनल डोनर्स होते थे, ड्रग एडिक्ट्स, दे यूज्ड टू सेल देयर ब्लड once or twice in a week. All right. उनके Okay. ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस। Oh my God. तो दे वेंट ऑन स्ट्राइक All right. अपने पैसे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारा क्योस हुआ, बहुत सारी अमवात भी हुई। तो हमने फिर सोचा कि वी कांट बी होस्टेड टू दीज पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। तो पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक इस मुल्क में जो बना वो डार मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया। आई वॉज अ सेकेंड स्टूडेंट एंड आई वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दैट ब्लड बैंक। Good, good, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर ये चीज़ें चलती रहीं और फिर हम आज तक So you were the one who started the volunteer blood bank Yes. projects overall Pakistan, ये and of course the rehabilitation centers as well. Yes. वो ये फिर बात की कहानी है जब हम इंडस में आए थे। तो फिर आपको इंडस का एक्चुअली ख्वाब जो देखा गया था वो 1986-87 में देखा गया था। इट्स अ पोस्ट बॉम्ब ब्लास्ट इन बोरी बाज़ार, डाउनटाउन ऑफ कराची, All right. जहाँ पर कोई 75 लोग शहीद हुए थे और 500 लोग ज़ख्मी हुए थे। जी. मैं हाउस जॉब कर रहा था और मुझे याद है कि ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फर्श पे ट्रीट किया था। लेकिन एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाद लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम आपको पैसे दे दें। इस क्राइसिस से निकले तो फिर हमने कहा नया बनाते हैं इमरजेंसी को। 100 बेड की इमरजेंसी का प्रोग्राम बनाया, 3.6 मिलियन रुपीज़ का बजट बना और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को हमने इस्तेमाल किया। वी गेव द मनी बॉक्सेस All right. और आउट ऑफ 3.6 मिलियन 2.4 मिलियन इन बच्चों ने जमा किया। 2.4 million. Oh. And 300,000 वर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपये का सबसे बड़ा कॉइन होता था। 40 सैक्स थी। This is जो how you भरी हुई थी। initiated. Yes. Yes. उस वक्त फिर हमने ख्वाब देखा था कि एक दिन अल्लाह ने मौका दिया तो एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। एंड दैट वाज 2007। And that's the Indus Hospital. इंडस हॉस्पिटल। Yes. तो वहाँ से wonderful, शुरू हुआ। mashallah. लोग हमारा बस पैसे वैसे तो थे ही नहीं, बट वी हैड फर्म बिलीव इन अल्लाह कि अल्लाह करेगा। बेशक बेशक। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे 99.9% लोग ये कहा करते थे कि ये बन नहीं सकेगा, बन गया तो चल नहीं सकेगा। किसी ने कहा 1 महीना, 6 महीना, साल में आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज हम 16 साल के हो गए, आपने नंबर्स बताया कि हम कहाँ पहुँचे। हाँ जी हाँ जी। तो हमारा पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था, आज हमारा बजट 57 बिलियन रुपीज़ का है। And we impact about 500 million patients a month. That's impressive that you are doing everything for serving the humanity. It's not only hospitals. I have a complete range from preventive side to primary health care to secondary health care to tertiary health care, physical rehabilitation centers हैं 4 हमारे, फिर हमारे blood centers हैं जहाँ पर, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा जो कराची का blood center है पिछले 3 हफ्ते पहले it has been accredited by the American Association of Blood Bank, जिसका अब नाम हो गया है कि Association for Advancement of Blood and Biotherapies in South Asia, first in South Asia। Great, great, माशाल्लाह, this is how you gain credibility। मुल्क के लिए। फिर हमारी जो लैब है वो हमारी पाकिस्तान की तीसरी लैब है which is accredited by the College of American Pathology। तो अब मतलब यहाँ तक पहुँच गया है, and it is all because of the team I have। Yes, मतलब कि इतनी सर्टिफिकेशंस आपकी अपनी ही बनाई हुई प्रोजेक्ट्स को मिल गई है, you know, from the foreign side, especially when we talk about US. So this is how your projects are getting credibility Yes. amongst us. So this is something कि बाकी कुछ हो रहा है तो ये चीज़ें मिल रही है ना, अदरवाइज कैसे मिलती हैं? तो ये एक इम्प्रेसिव चीज़ है माशाल्लाह, and I really appreciate that। जब मैं बात करती हूँ आपके टीचर्स की, तो ऑब्वियसली टीचर्स आर ऑलवेज अ रोल मॉडल। मुझे बताएं कौन से टीचर से जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली या आपको मोटिवेशन मिली? देखिए मेरी टीचर्स specific बहुत advice? सारी हैं, 1-2 टीचर्स हैं जिसका मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ, जब तो ख़ास तौर पर जब यंग यूथ के लिए, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी वालिदैन और टीचर की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं क्लास 1 से जब क्लास 2 में आया तो मैं फर्स्ट आया था, तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि आई वांट टू सी योर मदर टुमारो। अब पहले दिन अगर टीचर आपको ये कहे कि आप परेशान हो जाते हैं, मैंने ऐसी क्या शरारत कर दी कि मुझे बुला लिया गया। तो मैं अपनी मदर को लेके आया, तो मेरी मदर को कहा कि आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन एक मसला है,
मेरी हाइट ज़्यादा थी तो ये अपनी क्लास में बड़ा लगता है, तो मैं छुट्टियों में इसको तैयारी कराऊंगी और इसको फिर जो है ना डबल प्रमोशन दिलाना है। राइट। और छुट्टी के बाद मैं क्लास 3 में आ गया, मतलब मैंने क्लास 2 नहीं पढ़ी, तो मेरा 1 साल ऐड हो गया मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। जब मैं क्लास 6 में था तो मेरी एक क्लास टीचर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, मैं मॉनिटर था, फर्स्ट आता था, उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन कहा कि आई वांट टू सी यू ड्यूरिंग द ब्रेक इन द स्टाफ रूम। मैं चला गया कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात होगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बैठ गया, कहने लगी कि व्हाट यू वांट टू बी, मैं आई वांट टू बी डॉक्टर। तो ऐसे तो नहीं बनोगे। मैंने परेशान है, क्यों? कहने लगे आप, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम कुछ क्लास में बातें ज़्यादा कर रहे हो। फिर शी टुक आउट माई रिपोर्ट कार्ड और बोला अगस्त में यू वर फर्स्ट, योर परसेंटेज वॉज 95%, सितंबर में यू वर फर्स्ट, योर परसेंटेज वॉज 92%, एंड अक्टूबर में यू वर फर्स्ट, योर परसेंटेज वॉज 89%, नवंबर में यू विल नॉट बी फर्स्ट, परसेंटेज क्या होगी मुझे नहीं पता। इट कुड बी इन 70s। तो मैं उस वक्त इतने शर्म से जो है ना, जैसे होता है कि ज़मीन फटे आप चले जाएं, तो मैंने उनसे कहा मैम आपको अगले महीने कोई शिकायत नहीं होगी। और दूसरे अगले महीने नवंबर आई वाज फर्स्ट, 97%। माशाल्लाह। 6 महीने के बाद वो क्लास टीचर चली गई, उनकी शादी हो गई। थैंक्स टू सोशल मीडिया मैंने उनको ढूंढा। You found her? I found her after 50 years. What's her name? Miss Gulshan. You know, this is how, मतलब hats Yes. off to her and salam to her as well कि तो मैंने उनको फिर ढूंढा, फ्लोरिडा में कहीं थी। मैंने आई कॉल हर और मैंने कहा मैं बारी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर बारी। मैंने कहा यस डॉक्टर बारी। फिर उसके 6 महीने बाद वो पाकिस्तान आई, इंडस में आई, तो मैं बाहर निकला उनका इस्तकबाल करने के लिए। आई कुड सी, बहुत दूर से मुझे आई कुड सी द ग्लो ऑन हर फेस। उनकी आंखों में नमी थी, कुछ आंसू से थे। जब नज़दीक आई तो उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा बारी यू मेड मी प्राउड। तो when you see your students, yes. Obviously there's another feeling जो आपको ना एक proud moment होता है। Definitely. मुझे ये बताइए, you have been treating thousands of patients, obviously, even if I talk about a day. कोई ऐसा emotional या unforgettable memory या incident that has shaken you from inside, you moved you rather, और आपको अब तक याद है, वो शेयर करें। दो हैं। एक तो ये है कि मेरा एक पेशेंट था जिसको मैं ऑपरेट कर रहा था, एंड शी वाज यंग लेडी, उसका हार्ट वाल्व मैंने चेंज करना था, एंड आई स्टार्टेड ऑपरेशन। क्योंकि हमको हार्ट लंग मशीन पे ले जाना पड़ता है मरीज को ड्यूरिंग सर्जरी, फिर वापस उसका हार्ट को फंक्शन करना होता है। एंड यंग लेडी, उसका एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, वो बाहर हमारे काउंटर के पास घूमता रहता था, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा था, पठान लेडी। तो ऑपरेशन जो है ना, वो इसमें जब वाल्व चेंज हो गया तो वो वापस लेके आना होता है, तो इसका हार्ट ने फंक्शन लेना नहीं चाहा। तो मैं ये सुबह से शुरू किया, मैं उसको ट्राई करता रहा, हर तरीके चीज़ करता रहा, बट हर हार्ट वॉज नॉट टेकिंग ऑफ। शाम 5 बज गए, मेरे एनेस्थेटिस्ट ने कहा मुझे कहीं जाना है, तो जूनियर एनेस्थेटिस्ट छोड़ दिया, तुम छोड़ दो अब तो ये शी इज़ डेड। आखिर मैंने, और मैं सारे वक्त दुआ पढ़ता रहा कि ये आकर नाबदू, ये आकर नस्ताइन, अल्लाह से करता रहा कि क्योंकि मेरी आंखों में उसका बच्चा आ रहा था कि अगर इसको कुछ हो गया तो क्या होगा। कुछ 8 बजे मैंने एक बिल्कुल ही उल्टी चीज़ें की और 8 बजे उसके हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया। मैं आईसीयू में ले गया और उसके बाद मेरी एनेस्थेटिस्ट ने फ़ोन किया कि डेड बॉडी कब आपने हवाले की थी। मैंने कहा वो आईसीयू में, और फिर वो घर गई, तो वो टीचर थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में ये जो हम ये अचीव कर रहे हैं, हॉस्पिटल को जहाँ पहुँचाया है, इसमें जो है ना आपकी अपनी मेहनत भी होती है, अल्लाह का करम होता है, मरीज़ों की दुआएं होती हैं, और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो मेरा एक पेशेंट था जिसका मैंने हार्ट वाल्व चेंज किया था। ये बस गरीब अफ़गानी मरीज़, और वो फॉलोअप पे आता रहा, 1 साल बाद गायब हो गया। 4-5 साल के बाद APD से मुझे एक दिन जल्दी उठना पड़ गया किसी मीटिंग के सिलसिले में, वो लंबी हो गई। वापसी में मैं जब ड्राइवर के साथ जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने कहा सर वो आपका अफ़गानी मरीज़ आया था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आई मिस्ड हिम। उसने कहा कुछ दे के गए, एक छोटी सी पोटली थी जिसमें थोड़े से बादाम थे, थोड़े से काजू थे, थोड़े से अखरोट थे और थोड़ी सी किशमिश थी। मैंने खाया, मेरे ड्राइवर को भी दिए। यकीन माने कि अपनी ज़िंदगी में मैंने उससे मज़ेदार मेवन आज तक नहीं खाया था। फिर उसने कहा सर वो एक पैगाम दे के गया है कि सर से कहना कि मेरी वालदा ने सलाम कहा है, और सर से कहना है कि मेरी वालदा हर नमाज के बाद 2 रकात नफल उनके लिए पढ़ती हैं।
अब एक औरत जो हज़ारों मील दूर रहती है, जिसने मुझे कभी देखा नहीं है, और वो हर नमाज के बाद ये करे, आपको ये अरबों खरबों से भी ये नहीं मिल सकता। तो ये सब मुझे याद रहते हैं। और बहुत सारे, हर मरीज़ ऐसी तरीके से दुआ दे रहा होता है कि आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से। देखिए, यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी और यू गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, सो उसका तो आपको अजर मिलना ही मिलना है। वो तो अनडिनाई, मतलब कहते हैं ना कि देयर इज़ नो डाउट कि वो नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। मैं जब बात करती हूँ, ऑब्वियसली यू आर अ सर्जन ऑफ कार्डियक, हाँ कार्डियक सर्जन है आप। तो ये जो कार्डियक सर्जन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आजकल का ज़माना जो चल रहा है, ट्रेंड्स इतने चेंज हो गए हैं, यंगस्टर्स में कि कार्डियक अरेस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि 20s वाले जो है, 30s वाले, 40s भी कोई मेरे ख्याल से एज नहीं है, हार्ट अटैक्स के रेट्स और कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है? आप जब उनको देखते तो क्या उनमें क्या डिफरेंस होता है एक आम हेल्दी इंसान के? जो दो चार चीज़ें हैं, जिसमें एक तो बड़ा एलिमेंट जो है ना, हमारी डाइटरी हैबिट बहुत ख़राब हो गई है। जंक फूड पे हम बहुत खा रहे हैं, और ये देखिए समझने की बात ये है कि बच्चों को समझने की बात है, जो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, ये हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें चेंजेस बचपन से शुरू हो जाती हैं, अगर आप उसकी एहतियात नहीं कर रहे थे तो। और अगर जिस तरीके से पहले हमारा डाइटरी हैबिट डिफरेंट था, हम लोग वॉक करा करते थे, आज तो हमारे बस में नहीं है कि हम ड्राइंग रूम में बस गाड़ी पहुंचे, हम उसमें बैठे और निकल जाएं। लेजी तो वॉक कुछ नहीं कर सकते, एक्सरसाइज का एलिमेंट नहीं है। हाँ जी। तो उसकी वजह से, अच्छा, जब आपके सर डिजीज़ प्रोसेस शुरू हो जाए अर्ली एज में, वो बहुत एग्रेसिव होता है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट थे, तो हम लोग जब पढ़ा करते थे, तो उसमें होता है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र का हो, फैट आदमी हो, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, ये हो। अब इसमें से ये चीज़ नहीं। दूसरा एक एलिमेंट जो है ना, स्ट्रेस का एलिमेंट है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस इज़ नाउ बिकम अ मेजर फैक्टर इन चीज़ों पे। तो इस वजह से ये लोग जो है ना हमारे, और हमारा जो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, हमारे बच्चे, हम तो पहले गलियों में, मोहल्लों में, ग्राउंड में खेला करते थे। अब तो हम बैठ के कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, हम प्ले स्टोर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, प्ले गेम्स हैं, और तो सब चीज़ें हैं, PS7 है, पता नहीं क्या क्या, उसको नंबर भी, मुझे नाम भी याद नहीं है उन चीज़ों के। तो हम ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो हम बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये सारी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यंगर पॉपुलेशन में अब लोगों के अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। दूसरी, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट जो है ना इतना ज़्यादा है, ड्रग्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है, को उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखते हैं। आपकी डाइट को सही रखें, एक्सरसाइज करें, और अपनी डिसिप्लिन लाइफ हो, तो आई डोंट थिंक कि यंग एज में कुछ होगा आपको। तो मुझे ये बताएं कि जब हम खाने की बात करते हैं, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा हो, तो कैसे पता चलता है कि वो कार्डियक अरेस्ट ही है? और अगर जिसको भी आ रहा है, उसको अगर पता चले कि हाँ ये वही सिम्टम्स है, तो वो उससे कैसे काबू पा सकते हैं? देखिए, कार्डियक पेन से शुरू होता है बेसिकली, हार्ट अटैक जो होता है, और वो होता है यूजली आपका पेन जो है ना मिड चेस्ट के अंदर हो रहा है, जैसे आपका कोई सीने को दबा रहा है, इसके एक कोई वज़न पड़ा हुआ है इसके ऊपर, पेन है, पसीना आपको आना शुरू हो जाता है, उस किस्म की चीज़ें। ये बेसिकली यही चीज़ हैं जो आपको करते हैं। और वो उसके लिए एहतियातें हैं आपको, एकदम ये है कि कुछ ही होते हैं कि आप सीवियर कफ करना शुरू करें, कि ताकि उससे अगर कोई प्रोसेस है, फिर फ़ौरन डिस्प्रिन ले लें आप, 4 डिस्प्रिन फ़ौरन का लें, कि उससे कोई पानी के साथ, हाँ, उसको डिज़ोल्व करके वो ले लें ताकि वो हो जाए। फिर कार्डियक मेडिसिन होती हैं, बट ऐसे कोई वो फ़ौरन डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाएँ, किसी को फ़ोन करके घर आके कोई ठीक नहीं कर सकते, गो टू इमरजेंसी। अगर कार्डियक नहीं है, देखिए कार्डियक अगर इस किस्म का पेन है ना, कार्डियक के लिए इमरजेंसी होती है। अगर कार्डियक नहीं हुआ, कोई GI की वजह से हुआ, तो उसमें मरता नहीं है इंसान, इसमें मरता है इंसान। लेकिन ये देयर इज अ वेरी, मतलब कहते हैं ना, हल्का सा बारीकी सा डिफरेंस है, अक्सर लोगों को नहीं पता चलता, और 2-3 सेकंड में ही कार्डियक अरेस्ट ही बहुत डेंजरस होता है। बिल्कुल, तो आपको इतना मार्जिन ही नहीं मिलता। बिल्कुल, कि मतलब तो आप प्रायोरिटी भी रखें कि आपको चाहे चेस्ट हार्ट पेन है, हार्ट पेन के लिए, और आप सीधा चले जाए अस्पताल। अगर नहीं हुआ तो आप बच जाएंगे। और उसके दौरान जब आप अस्पताल जा रहे हैं, तो आप क्या मतलब खांसी करें या कफ मतलब कोशिश करें करते हैं, और फिर उसके बाद ये डिस्प्रिन वगैरह ले लें, सब लिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, हर जगह ना हो किसी भी ऐसे इंसान के पास, डिस्प्रिन मिल ही जाती है, तो साथ ही साथ में। अच्छा, आई वाज थिंकिंग, अल्लाह रहम करे सबके लिए, लेकिन ऑब्वियसली द मार्जिन एंड द रिस्क ऑफ
turning into a dead person in next 2 to 3 seconds is just इतना सा कि इसमें वो बहुत ही इट ऑल डिपेंड्स कि क्या है और किस वक्त हुआ कैसे हुआ और इमीडिएट कोई ऐसी फीलिंग आए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं बताई जाती है। हमको सबको सिखा देना चाहिए कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। एकदम ऐसी फीलिंग हो कि कोई आता है और आप देखें कि वो सांस नहीं ले रहा है या उसको फील करें कि पास नहीं है तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज थंब एक मुक्का मारें उसके फ्रंटल चेस्ट के ऊपर एकदम ठीक है और एटलीस्ट कभी कभी उससे भी वापस आ जाता है इंशाल्लाह। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं इसके बिल्कुल ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि यूजुअली कुछ जो मैंने सुना हुआ है ये जो माइक्रोवेव वगैरह होता है या जो इस तरह की जो अप्लाइंसेज है इलेक्ट्रिकल इनका इस्तेमाल जिस तरह में आप खाने गर्म करते हैं या इन्हीं में आप खाने बनाते हैं आर दीज गुड फॉर हेल्थ और नॉट? माइक्रोवेव का तो इम्पैक्ट है कि कुछ उसके दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। असल में अब हम लोग इतने लेजी हो गए हैं कि हम इसी चीज़ों पर जाते हैं। नॉर्मल तरीके से जाना चाहिए कि जो नॉर्मल चीज़ें आप खा रहे हैं उसके अंदर जो हमेशा हमारे मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं ऑडियंस को आवाम को कि माइक्रोवेव और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए उन पेशेंट्स को भी कि नहीं? मिनिमम होना चाहिए। कोई चीज़ है कभी बहुत जल्दी होती है कुछ कर लें लेकिन ये कि मिनिमम होना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल तरीका है कि जिस तरह कुकिंग होती है वैसे कर लें। बिल्कुल। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि जब हम आपके इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं और जब हम हार्ट सर्जरीज़ की बात करते हैं तो हार्ट सर्जरीज़ ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है। जो अफोर्ड भी कर सके वो 2 बार सोचेगा कि उसके पैसे ना ही लगे। तो अब मुझे ये बताएं कि जब आपने ये स्टार्ट किया है तो जो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में हार्ट सर्जन्स हैं उनके साथ ऑब्वियसली एक आता होगा एक कंपटीशन भी आता होगा, कंपेटिटिव सोसाइटी भी है, तो वहाँ पे आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? नॉट रियली। देखें बात यह है कि इतने मरीज़ हैं कि जितना काम को कम है डेफिनेटली। तो और हमारा मकसद भी सिर्फ ये था कि देखें कि एक जिसको फ्री हो सकता है उसको करेंगे और करना चाहिए। वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको कुछ करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा या अपनी कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी। और ये सिर्फ हार्ट के नहीं हर चीज़ का है। देखिए कैंसर के हमारा चाइल्डहुड कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अफगानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, अपने यूएई से जो वर्कर क्लास है जिनकी इंश्योरेंस नहीं है। आपने कैंसर का भी मतलब बनाया है? बच्चों के कैंसर का हमारा सबसे बड़ा यूनिट है और हम सिर्फ उसकी होलिस्टिक केयर करते हैं, सिर्फ इलाज नहीं करते हैं, हम उसकी साइको सोशल सपोर्ट भी करते हैं। हमने वहाँ पर अपना एक रेजिडेंस बनाया हुआ है जो कि 20 फैमिलीज़ को कर सकता है, रह सकता है। क्योंकि लोग जो बाहर से आते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट कोई साल चलता है या 2 साल चलता है, तो वो तो अब जो लोग आते हैं अपना घर छोड़ के कराची में आके बैठेंगे वो कहाँ रहेंगे। तो हम उनकी उस नीड को भी पूरा करते हैं। उनकी सोशल हमारा साइको सोशल डिपार्टमेंट है उसका काम ही ये है कि चाइल्ड बच्चों के लिए हॉस्पिटल को चाइल्ड फ्रेंडली बनाएं, उनकी सोशल नीड्स को देखें। हमारे अब जब बच्चे देखें डायग्नोसिस ऑफ अ कैंसर इन अ बच्चा पाकिस्तान में ये मौत का डायग्नोसिस है कि ये मर जाएगा। फिर बच्चा जब ट्रीट होता है 1 साल 2 साल के बाद जब ठीक होता है तो जब वो वापस जाता है तो स्कूल जाता है, तो स्कूल में वो अपने क्लास से भी पीछे हो जाता है, तो दूसरा लॉस उसके दोस्त गुम हो जाते हैं। तो हमने फिर हॉस्पिटल स्कूल बना लिया। हम उन बच्चों की वो पढ़ाई जो ज़ाया हो रही है उसको हम कवर करते हैं ताकि वो जब वापस जाए तो अपनी क्लास में जाए, अपने दोस्तों के साथ बैठे। तो इसी तरीके से अब सब बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका जो एक लास्ट स्टेज पे आते हैं और उनकी जो है ना बेसिकली पता होता है एंड ऑफ लाइफ है, तो उसको सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना, उनके सिबलिंग्स को तैयार करना कि ये एक शौक से आएगा। और फिर उसके बाद जो उनकी डेथ हो जाती है तो ब्रीवमेंट कॉल देते हैं हमारे लोग, उस फैमिली से इंगेज रहते हैं। उसकी कोई यादें उनके पास नहीं थी तो उसकी तस्वीर होती है तो वो हम रखते हैं। और फिर जब बच्चे यहाँ होते हैं जिनको जो नॉर्मल भी होते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकते, उसका एक प्ले एरिया बना हुआ है, हम सारे इवेंट्स उसके अंदर करते हैं। ईद के दिन हमारी वो जो साइको सोशल वो ले होते हैं, हम लोग भी जाते हैं, केक कटिंग होती है, किसी की बर्थडे है तो ये बर्थडे मनाते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में हम वहाँ पर एक उसी प्ले एरिया के अंदर एक ईद बाज़ार लगाते हैं जहाँ पर जैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, वहाँ आते हैं अपने लिए, लड़कियों के लिए कपड़े हैं, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, लड़कों के लिए जूते हैं, फिर लड़कों के लिए भी उनके कपड़े हैं, अपनी मदद से चश्मा ले लिया, ये ले लिया, जो बच्चा करता है अपने हिसाब से, ताकि उसको फील ना हो कि वो इससे महरूम है। तो वो इट्स अ ट्रीट टू सी दैट बाज़ार में जिस तरह बच्चे खुश होते हैं वहाँ पर। और ये सब हमारे लोग जो वॉलंटियर्स होते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चीज़ें डोनेट करते हैं। सो
हम एक होलिस्टिक केयर देते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये ना हो कि सिर्फ एक चीज़ हो जाए दूसरी चीज़ नहीं हो। नहीं, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और बहुत अच्छा आइडिया कि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको उनका माइंड डाइवर्ट करके, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल एक मेडिकल ट्रीटमेंट से ही बस मायूस ना हो जाए। लास्ट विशेस होती हैं कि जी मुझे शाहिद अफरीदी से मिलना है, तो उसे मिला तो आप फिर कर देते हैं पूरी? जी बिल्कुल। किसी ने कहा मैंने उम्रे में जाना था, हम उम्रे पे भेज देते हैं। मतलब वी डू जो हम कोशिश करते हैं पूरी इसको करें। और ये जो देखें ना, बात ये है कि ये जैसे ये मेरा काम नहीं है, अकेला हमारा काम नहीं है, ये हम सबका काम है। हम सबको मिलके इतने चैलेंजेस हैं इस मुल्क के अंदर। आप देखें अनफॉर्चुनेटली मैटरनल मॉर्टेलिटी में हम दुनिया में नंबर 1 है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी में नंबर 1 है। अभी इस इलाके, इस पाकिस्तान में ऐसे इलाके इतने सारे हैं जहाँ पर एक्सेस नहीं है लोगों को। ऊपर नॉर्थ में अगर आप देखें तो पहाड़ी इलाकों में लोगों को अगर यूजली होम डिलीवरीज हो रही होती हैं और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होती है तो उनको यहाँ से ऊपर से नीचे ले जाने में 8-8 घंटे लग जाते हैं। और बाय द टाइम नीचे पहुँचते हैं तो माँ भी मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं। डिलीवरीज तो एटलीस्ट फ्री होनी चाहिए हर जगह। मतलब तो ये इतना काम है इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ तक पहुँचा दिया, अल्लाह में आगे भी पहुँचा देगा। और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जेनरॉसिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल। और जैसे मैंने बात ये थी कि हम 10 साल से पंजाब में काम कर रहे हैं। हमारे समझे कि 3 बिलियन पेशेंट्स जो है ना पंजाब में हैं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी को पता नहीं है कि जी इंडस, वो जैसे इंडस का, अच्छा इंडस कराची वाला हॉस्पिटल। अब मकसद ये है कि हमको ये क्रिएट करना है, लोगों को बताना है कि जहनों में डालना है कि ये सिर्फ कराची में नहीं है, इट्स पैन पाकिस्तान। तो उसमें आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट से भी ज़रूर होगा। तो मीडिया जो है ना, उसका रोल भी बहुत है कि इन चीज़ों को उजागर करे, ताकि जिसको नहीं पता उसको पता लगे, वो अपना इलाज वहाँ करे। नहीं, ऑब्वियसली देखिए कराची में ही खाली नहीं है इंडियाज़ हॉस्पिटल। देयर वाज अ नोशन कि कराची बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। लेकिन अब ये लोग वहाँ से ट्रैवल करके लाहौर भी आ गए हैं। लाहौर में भी 10 सालों से काम चल रहा है। लाहौर है, मुल्तान है, पंजाब है, भौम है, सिंपल पंजाब की बात अगर मैं करूँ, पूरे पंजाब में अभी हमारे कुछ गवर्नमेंट के साथ हमने उनकी प्राइमरी मोबाइल हेल्थ केयर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के 20 बसेस का हमने एक टेंडर में हम शामिल हुए, तो हमने ले लिया है। तो इंशाअल्लाह अगले 1 महीने के अंदर हम शुरू कर देंगे। 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब में हम ये भी शुरू कर रहे हैं, जहाँ प्राइमरी केयर डोर स्टेप्स पे जाएगी बस, जो इलाज करेगी वहाँ पर। अच्छा, मुझे बताइए, व्हेन आई टॉक अबाउट योर इनोवेटिव प्राइमरी केयर इंटरवेंशंस, इसमें आपने कंटेनर क्लिनिक्स और बॉट क्लिनिक्स बनाए हैं रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे चलता है? देखिए बात ये कि हमने कहा कि जी विद इन मंथ्स हम तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बनाया था, विद इन मंथ्स एहसास हो गया कि अब 70% पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको हॉस्पिटल आना नहीं चाहिए। तो हमको उसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से हम इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए। जैसे कि जी कुछ जगह हैं कि यहाँ पर फ़ौरन कुछ करना है तो कंटेनर क्लिनिक जल्दी तैयार हो जाता है, खड़ा कर दिया है, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगेगा। फिर मोबाइल क्लिनिक्स बनाई, जो कि कुछ जगहों पे फाइनेंशियली वायबल नहीं होता कि आप कोई क्लिनिक खड़ा करें वहाँ पर, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो आप मोबाइल ले जाएं। एक गांव में थोड़े से लोग हैं तो एक दिन वहाँ चला जाए, दूसरे दिन दूसरे चले जाए, फिर उनको पता होगा कि मंडे को यहाँ आएगा, ट्यूसडे को वहाँ आएगा, उनको दवाइयाँ 1 हफ्ते की दे दें। ये किया। बोट जो सदर्न पंजाब का इलाका था, ये राजनपुर रोजान का इलाका, जहाँ पर एक्सेस नहीं होता रोड का, और होता भी है तो वो कोई 8-10-12 घंटे लग जाते हैं। तो 3 साल पहले हमने एक बोट क्लिनिक शुरू किया, जो कि इसके डॉकिंग स्टेशंस हैं। जब वहाँ जाते हैं तो जब हम पहली दफ़ा वहाँ गए तो 72 साल में पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा किसी डॉक्टर की शक्ल वहाँ देखी गई। और ये कब की बात है? ये 3 साल पहले हमने जब शुरू किया था, जब पाकिस्तान को 72 साल हो चुके थे। तो ये एक अलमिया है कि अभी भी ऐसे और बहुत इलाके ऐसे होंगे जहाँ हमें पता नहीं है। फिर हम अपने कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आप मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, फिर हमने वहाँ पर वो शुरू कर टेली हेल्थ क्लिनिक शुरू कर दिए। अब टेली मेडिसिन के ऊपर हमारा रूल है कि हम उसके थ्रू लोगों के साथ जाएं। अच्छा, ये सब बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगी है। और कैसे होती है? क्योंकि हमारे पास तो देखें, वी आर क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एन एक्सटेंट कि जी यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, देयर इज नो मैकेनिज्म यू कैन पे। ऑलराइट, तो ये कोई पर्ची भी नहीं है, मतलब कोई पर्ची के 10 रुपए भी नहीं है। मैं यही सोची थी कि तो हाउ आर यू मैनेजिंग द होल सिस्टम, मतलब फंड्स सबसे पहले देखें को किस तरह हमारी फंड कलेक्शन होती है, ज़कात, डोनेशन, और पूरे पाकिस्तान से
दुनिया में हमारे पास भी अब रजिस्टर्ड चैरिटी इन USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE में है, यूरोप में है, सब जगहों के ऊपर। मैं अभी अगले महीने इसी 28 जनवरी को जा रहा हूँ दुबई एंड फिर आई विल बी इन UK फॉर 2 weeks। हमारे फंड रेजर्स होते हैं वहाँ पर। And you appeal for donations yourself all over? Yes, all over। और जिसमें ज़कात भी होती है, डोनेशन भी होती है। ज़कात का हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म एज़ पर शरिया लॉ, जो कि मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की गाइडेंस में हम करते हैं उसको, ताकि क्योंकि ज़कात लोगों का फ़र्ज़ है, उसको सही मुस्तहिक पे पहुंचना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़कात का एक ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम उसको उस तरीके से अकॉर्डिंग टू द शरिया गाइडलाइंस उसी तरह पहुंचाते हैं। तो हर एक को ये बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए कि शरिया के मुताबिक मुस्तहिक को मिलता है। वहाँ पे आ जो असेसमेंट करता है उनको मेरी गाइडेंस है कि अगर आपको शक हो या ग्रे एरिया हो ना, तो आप उसको डोनेशन से कर दें, क्योंकि अगर मुस्तहिक के ज़कात का डोनेशन से हो जाए तो कोई मसला नहीं है, गैर मुस्तहिक का ज़कात से नहीं होना चाहिए, वो उसका एक बड़ा चैलेंज है। तो हम बड़े एहतियात के तौर पर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी फ़ंड पाकिस्तान से रेज़ होता है अभी भी, और बाहर से भी आता है। रेगुलर डोनर्स हैं आपके या हर दफ़ा कोई नई से नहीं भी आते हैं? स्पोरेडिक भी हैं, रेगुलर भी हैं। और हम अभी जो है ना कोशिश हमारा अब ये है कि हमारा एक प्रोग्राम है इंद शाकिरीन, जिसमें हम लोगों को लोगों को ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूस दो सदका, आपको रोज़ देना चाहिए, आपको हर महीने देना चाहिए। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम तकरीबन, हमारा कराची हॉस्पिटल जो है ना उसका तो तकरीबन साल महीने का ख़र्चा 1 बिलियन रुपीस है, तो 12 बिलियन हो गया साल का। तो हम कहें 1 लाख आदमी 10,000 रुपये महीना कंटिन्यूसली देते रहें तो महीने का 1 बिलियन हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आराम से हो जाता है। कोई 25 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की, उसमें 1 लाख ढूंढना कोई मसला ही नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, और यही प्रोग्राम हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। UK में भी हम वहाँ पर तो 1 पाउंड ले कर दें तो उसका वही तकरीबन, आप देखें इकोनॉमी वाइज तो 30 पाउंड में अब 10,000 रुपये बन जाते हैं। आप सोच लें, 30 पाउंड किसी को पता भी नहीं लगा, 1 पाउंड तो वो कॉइन्स ही आदमी के इधर जस्ट अ नॉर्मल थिंग। फॉर अस हमारे लिए होगा कि किसी की जान बच जाएगी, किसी की जान बच जाएगी। हमारे यहाँ 300 रुपये हो गए ना, हमारे लिए तो बहुत बन जाएगा। हाँ जी, 1 पाउंड इज 340 पाउंड, 340 रुपये। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि यूजुअली जो बाकी फाउंडेशंस हैं जो कि फंडेड बेस्ड काम कर रही हैं, उनमें यूजुअली ये होता है कि ठीक है वो मुफ्त इलाज कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सिस्टम्स को कैटेगराइज्ड भी रखा हुआ है। असेसमेंट करते हैं कि कौन जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका तो फ्री इलाज कर दिया, या कोई किसी सर्टन लेवल पर है या किसी सर्टन स्टेज पर है तो उसको ग्रैब पकड़ लेते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है उसको फिर वो नहीं इतना मार्जिन देते हैं, उससे पूरी फ़ीस भी चार्ज करते हैं। और कोई ऐसा बहुत ही क्रिटिकल केस होना तो नहीं एक्सेप्ट करते। तो आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम, कभी आपको कोई ऐसा केस आए जो कि क्रिटिकल हो, आपको पता है कि नहीं इवेंचुअली, या कोई ऐसा फैमिली आए बहुत एलीट और रिच जो कि हो सकता है आए कि जी हमने मुफ्त इलाज कराना, तो आप लोग हाउ डू यू? देखिए हमारे यहाँ तो हर एक का इलाज होगा फ्री, कोई भी आए, रिगार्डलेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एनी क्या कहते हैं उसे, क्लास डिफरेंस। देखिए बात यह है कि जिस वक्त कोई इलाज के लिए मेरे पास आए वो ज़रूरतमंद है, पैसा से कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। तो हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी और हॉस्पिटल में ना हो और उसके पास ही हो, तो वो मल्टी बिलियनर भी जो है ना, मैं सिंपल सी लोगों से कहता हूँ कि मेरे अस्पताल के बाहर रोड पे किसी मल्टी बिलियनर का एक्सीडेंट हो जाए, तो बेस्ट थिंग तो ये होती है ना कि जहाँ पर सबसे नज़दीक जगह है वहाँ पहुँच जाओ ताकि ज़िंदगी बच सके। उस वक्त वो ज़रूरतमंद है, उसके बिलियंस काम नहीं आ सकते क्योंकि टाइम इज़ टिकिंग। और 1 घंटे के अंदर अंदर उसको अगर नहीं मिला तो ही विल डाई। बिल्कुल। तो इसलिए वो आता है, उसका इलाज होता है, इमरजेंसी को प्रेफरेंस दी जाती है। जो मॉडल्स हैं, हाँ जो मॉडल्स हैं ना वो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी जैसे हमारा मॉडल तो फ्री है क्योंकि मैंने दूसरे की गलतियों से सीखा है, क्योंकि जो इस किस्म के मॉडल होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको करें और जो कर सकते हैं उनसे चार्ज करें, एक जनरेशन के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेस नहीं है। तो मकसद हमारा वो टारगेट पॉपुलेशन है हमारी, कोई और भी आ जाए उसके हो जाए। जो स्टेजेस की बात है वो प्रायोरिटी हर एक अपनी डिसाइड करता है।
अगर वो ना भी होते तो ऐसा भी ना हो रहा होता, उनका होना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ किसी मसलहतन कहीं ना मिल जाती है, तो हर एक वजह से वो उनकी एक फिलॉसफी है और उसके पीछे उनके पास जस्टिफिकेशन भी है, विच इज़ राइट, कंप्लीटली फाइन। हाँ, हर एक का अपना मॉडल है, उसी हिसाब से करेंगे। अगर 1 रुपया उसको 4 में डिवाइड करें, कोई कहता है, तो मेरा मकसद ये होता है कि अगर एक रोटी है उससे एक आदमी का पेट भर सकता है तो उसी को दे दो ताकि उसका पेट भर जाए। 4 टुकड़े करके मैं 4 को दे दूँ, चारों का पेट ना भरे तो चारों ने, हाँ। एनी अदर थिंग यू वांट एंड यू विश टू ऐड इनटू द, कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो? मेजॉरिटी सब चीज़ हो गई है, लेकिन ये है कि वी वांट कि ये आप दाम में दर में सुख में जो कुछ कर सकते हैं जो लोग वो करें, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, हमारे लिए दुआ करें। हाँ जी। और कोई अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट यू कंट्रीब्यूटेड, व्हाट मैटर्स इन द एंड। 1 रुपया हो, चाहे लाख रुपया हो, चाहे करोड़ रुपया हो। मैं तो उस वक्त की मिसाल देता हूँ, जंग तबूक में हज़रत अबू बकर ने कहा, आप क्या, मुझे आप क्या लेके? उन्होंने, मैं अपना पूरा जो कुछ था ले आया। हज़रत अबू बकर ने, मैं आधा ले आया, और एक थे वो कुछ थोड़ी सी खजूर ले आए, वो टॉप पे रख दी। अब किसके पैसे में कितना बरकत है ये अल्लाह जानता है। अगर किसी के पास 1 ही रुपया था, वो पूरा 1 ही रुपया लेके रख दिया उसने, उसमें बहुत कुछ है, और उसके घर पे भूखे हैं सब लोग, तो उसकी वैल्यू इज़, जिसके घर पे सब कुछ हो और वो आधा घर ले, मतलब जितना ले आए, नियत है और आपकी एफर्ट्स है और आपकी वॉलंटियर एफर्ट्स हैं। मैं आपके ब्लड बैंक वॉलंटियर एफर्ट्स की जब बात करती हूँ, तो एक ज़माना था, 10 साल पीछे आप चले जाएं, तो खून देते वक्त ना इतना हर किसी में अवेयरनेस नहीं थी, हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। हर कोई एक दूसरे को रोकता भी था, मना भी करता था, फैमिली वाली अगर कोई हो जाए। तब भी आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे, अब भी क्या उस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं या नहीं? थिंग्स आर डिफरेंट। देखें, अभी भी उतना नहीं है अवेयरनेस जितने नहीं है उसकी ज़रूरत है। और टू योर सरप्राइज, इस वक्त भी इस मुल्क में 90% ऑफ द ब्लड इज़ अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। All right. 90%. And that's not healthy. हमारा उसमें हेपेटाइटिस है, ये सब कुछ है, आप तो बीमारियां दे रहे हैं लोगों को। तो व्हाट वी नीड इज़ कि हमको सबको एक सेफ ब्लड देना है, ये हमारा मिशन है, और उस मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं आज नहीं। और जो हमारी ब्लड बैंक की डायरेक्टर हैं डॉक्टर सबा जमाल, आई हैव येट टू सी सच एन हार्ड वर्किंग पैशनेट लेडी। आप उनसे बात करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, जब वो बात करती है ना, यू कुड फील उनकी बॉडी का एक एक अंग बात कर रहा होता है कि जी ब्लड के लिए मुझे करना है, अपनी ज़िंदगी में मुझे सबको सेफ ब्लड देना है। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस पे हम कितना खर्च करते हैं, कितने बिलियंस लग गए हैं हम लोगों के, कितने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं, कितने के लिवर ख़राब हो गए, अब लिवर ट्रांसप्लांट करना है, एक लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर 1 करोड़ रुपये खर्च होता है। तो हम इन चीज़ों को, ये हमारा काम प्रिवेंशन करना है, हम प्रिवेंट करें और हम इस जगह, ताकि हमको ये ज़रूरत ना पड़े। बात तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुझे अल्लाह में इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने बनाए हुए अस्पताल बंद करूँ। और ये ऐसे नहीं कह रहा है, जब हम कैजुअल्टी बना रहे थे तो एक साहब मेरे पास एक एम्बुलेंस के डोनेशन लेके आए, मर्सिडीज़ एम्बुलेंस हॉलैंड से, और जाने लगे तो मुझे कहने लगे, यार डॉक्टर साहब अगर कहें तो मैं आपके लिए पूरा अस्पताल डोनेट करा सकता हूँ। उस वक्त में जूनियर डॉक्टर, मैंने कहा कि ये पूरा अस्पताल कैसे ले आएंगे? कहने लगे, डॉक्टर साहब हॉलैंड में अस्पताल है, मरीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रिवेंशन पे इतना काम कर लिया है। यहाँ वहाँ बूढ़ों के लिए अस्पताल है या बच्चों के लिए अस्पताल है। वेरी नाइस। तो अस्पताल बंद हो रहे हैं। ये होती तरक्कियाँ। ये 1986-87 की बात कर रहा हूँ। आज हम 2024 में ये सोच रहे हैं कि और कितने अस्पताल बनाए। और ये सोचे कि अब अवेयरनेस कैसे दी जाए कुछ इलाकों में, मतलब अब नो डाउट वी आर लैगिंग बिहाइंड। जब मैं बात करती हूँ हमारे पाकिस्तान की अशरफिया क्लास की, तो यूजुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर उनको होती है, कोई सीरियस इशू होता है, तो वो हमेशा मुल्क से बाहर भागते हैं इलाज करवाने के लिए। वो लोग प्रेफर नहीं करते कि हम लोग पाकिस्तान से इलाज करवाएं ना, पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम इतने रिलायबल नहीं है उनकी नज़रों में, सबकी नज़रों में। नो डाउट। आप बताएंगे कैसे चेंज हो सकता है सिस्टम, कैसे चेंज हो सकता है, कब आएगी तब्दीली, कि सबको होगा कि नहीं हमने बाहर नहीं जाना? देखिए सिस्टम तो ये है कि देखें हर किस्म के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे, देखिए कुछ लोग यहाँ शॉपिंग नहीं करते, वो जाके बाहर से करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है और उनके पास वो करते हैं।
और अपने बच्चों की शादियां जो है ना वो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते अब हैं, बॉयफ्रेंड आ वो गया। कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब आपके मुल्क में ये चीज़ होगी, हमने अपनी देखिए हमने जो क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट करा है ना, तो क्वालिटी केयर का एक बेंचमार्क रखा, और बेंचमार्क ये रखा कि हम अपना इलाज खुद वहाँ कराएंगे। और ये ज़बानी जमा खर्च नहीं थी। मेरे मेडिकल डायरेक्टर का बाईपास, वो अमेरिकन सिटीज़न थे, उनका जो बाईपास सर्जरी जो है ना उनकी, उन्होंने कहा मैं यहीं कराऊंगा, यहीं कराई। मेरी मदर इन लॉ को पेसमेकर वहाँ लगा, मेरे मेडिकल डायरेक्टर के फादर की सर्जरी वहाँ हुई। बात ये वही है कि अगर होटल का मालिक अपने होटल में खाना खा रहा है ना, तो यानी कि आप भी वहाँ खा सकते हैं। समझ जाए कि सही खाना है, खाना सही है, खाना सही है। तो इसीलिए आप उस अस्पताल में अगर हम कहते हैं, हाँ। लेकिन बात ये थी कि मैं जब इसका मिशन स्टेटमेंट लिख रहा था तो हमारा एक लफ्ज़ था एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की डेफिनेशन के लिए मैं बहुत तगुदू करा कि सही पता लगे कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। तो एक दिन मैं तफसीर पढ़ा था, उसमें आ गया इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता है। अच्छा, एहसान हमारे यहाँ के, मैंने आप पे एहसान कर दिया, आपने मेरे पे एहसान किया, अरबी में एहसान का मतलब है एक्सेलेंस। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन आई तो उसमें एक हदीस कुदसी है, हदीस जिब्रील है कि आप जो है ना जो आपकी इबादत हैं उसका एक्सेलेंस ये है कि आप जब नमाज़ पढ़े तो ऐसे पढ़ें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं तो कम से कम ऐसा हो कि अल्लाह आपको देख रहा है। और मामलात में जो अपने लिए पसंद करें अपने भाई के लिए पसंद करें। मैं तो चाहूँ कि मेरा इलाज क्लीवलैंड में हो, हार्वर्ड में हो, और इसके लिए मैं ऐसे ही कोई से तो वो ही हमारी गाइडेंस थी, उसी तरह हमने बनाया। और जब ऐसे बन जाएंगे तो किसी को पता नहीं कि किसी वक्त तो ऐसा आएगा अशराफिया के पास भी कि उसके पास मोहलत ही नहीं होगी, तो उसने चलो मैं इंडस चला जाता हूँ, देखिए मेरी जान बच जाएगी, तो वो वहाँ से करके जी। हमारे एक डोनर थे, वो मुझे कहने लगे मैं इंडस में कराता हूँ। मैंने कहा सर लाइन में लगना पड़ेगा। वेरी गुड। कहने लगे मैं लाइन में लग जाऊँगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो प्राइवेट में करा लें, किसी एक का खत ना मारे। तो मैं उससे पूछने लगा कि क्या बात, आप क्यों कराना चाहते हैं? कहने लगे मैं इसलिए कराना चाहता हूँ यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये कि तुम मेरे साथ खड़े होगे, दूसरा ये कि उनकी एंजियोग्राफी होनी थी कि अगर मुझे स्टेंट की ज़रूरत पड़ी तो तुम अगर कहोगे कि अमेरिकन स्टेंट तो वो अमेरिकन होगा। हाँ। बाहर का मुझे पता नहीं, अमेरिकन करके चाइनीज़ लगा दें। तो फिर उनकी एंजियोग्राफी हुई, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरा ख़र्चा 3,000 रुपये है, वो मुझे 80 लाख रुपए दे के चले गए, अस्पताल के लिए डोनेशन करते हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हम सबको भी अपना कम से कम ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, झूठ से परहेज़ करना चाहिए। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जी कि कामयाबी अगर हो सकती है उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरत है, सदाकत और अमानत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल अल्लाह ताला ने ये सिर्फ इस्टेब्लिश कराया कि ये सादिक और अमीन है, उनके दुश्मन भी क्या करते थे। तो यू कांट हैव सक्सेस अनलेस यू आर सादिक और अमीन। ट्रू। मुझे आपसे ये पूछा था कि आप आवाम को ये बताइए कि क्या एक कॉन्सेप्ट है ना, कहते हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट इट, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो किस किस एज के बच्चे बच्ची या लड़का लड़की या ख़वातीन या मर्द हजरात को ब्लड देना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली देना चाहिए, और कितने पिंट्स, क्या इज़ दैट हेल्दी और नॉट? ये कॉन्सेप्ट ज़रा बताइए। एक तो ये एज 18 साल से लेकर 60 ईयर्स तक कर सकते हैं, क्या है कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि वो हो। और ब्लड आपका जो है ना, आपका ब्लड जो है ना 120 डेज पे रिप्लेस हो जाता है ह्यूमन अंदर ही। आपकी अपना एक सिस्टम है कि आपका 120 दिन में आपका ब्लड नया बनता है। ऑल राइट, ठीक है ना। तो आप ब्लड देती हैं तो आपका वो जल्दी बन जाता है, हेल्दी। तो आपकी जो प्रोडक्शन है, बोन मैरो जहाँ ब्लड बनता है वो काम करता रहता है, तो हेल्दी होती है। और एन एवरेज हर 3 महीने के बाद आप ब्लड दे सकते हैं, और 1 यूनिट दे सकते हैं, विच इज़ अबाउट 500 ml। And it's okay and easy for the girls or the women or the ladies as well? सबके लिए, लेकिन उसके लिए देखिए प्री रिक्विजिट है। उसके लिए कुछ क्वेश्चनेयर होता है, जो होता है कुछ टेस्ट होते हैं, वो होता है हीमोग्लोबिन एक लेवल पे होना चाहिए, वो सारी आप उसको मैच कर रहे होंगे तो आप, और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है या कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आपको पिछले कोई 1-2 महीने के अंदर कोई ऐसा वो सब उसकी वो है, एक पूरा इसका वो है प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से
और ब्लड देना चाहिए। आपके एक ब्लड से 4 जानें बचती हैं। ये तो है। एक ब्लड से किसी को प्लेटलेट लगते हैं, किसी को पैक्सल देखिए, लगते हैं, आखिरी किसी को moments पे- प्रेसिपिटेट लगता है, किसी को प्लाज्मा लगता है। एक ब्लड से 4 जानें बचती हैं। अगर आप लोग इफ़ यू फील कि आप लोग हेल्दी, यू गाइज आर इनफ हेल्दी, तो प्लीज़ आप लोग हर 3 महीने बाद 500 ml ब्लड वैसे ही दे दे। आपके लिए भी वो एक आपकी स्किन भी अच्छा। ग्लो करेगी, आप भी हेल्दी होंगे और किसी की जान बचेगी। जो लास्ट मोमेंट पे आप लोग को 4 मैसेज जानें रिसीव होते बचेंगी। हैं, 4 जाने बचेगी। जो लास्ट मोमेंट पे आप लोग को मैसेज रिसीव होते हैं कि फ़लाँ ब्लड चाहिए, फ़लाँ चाहिए, इतना, तो वो दैट्स वेरी हार्ट ट्रेंडिंग। प्लीज़ मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से अगर आप लोग कर सकते हैं हेल्प इन सर्विंग ह्यूमैनिटी, दैट्स अमेजिंग। जब मैं बात करती हूँ पंजाब की, तो आई एम सो अमेज्ड कि आप लोग ने माशाल्लाह 10 ईयर्स कंप्लीट किया। इट्स अ डेकेड, और डेकेड कंप्लीट करना सक्सेसफुली आसान नहीं है, और ये पंजाब में है। मुझे पता है पंजाब में आप और किधर एक्सपेंड करें? देखिए, हमारा पंजाब में जो लाहौर वाला में एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम बन चुका है। हमारा मिशन ये था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल बनाएं। तो कराची में बन गया, अब एक्सपेंड हो रहा है। हम कोई 1350 बेड पे लेके जा रहे हैं, 1500 बेड पे लेके जा रहे हैं। लाहौर में 600 बेड की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, 100 बेड ऑपरेशनल अगले 3-4 महीने में, 400 बेड पे चली जाएगी। फिर इंशाल्लाह पेशावर और कोयटा में भी चले जाएंगे हम लोग। तो ये तो हमारा एक वो है। इसके अलावा अब हमारा ज़्यादा रोल जो है ना, और ज़्यादा हमारी तवज्जो जो है ना, प्राइमरी केयर के ऊपर और प्रिवेंटिव साइड के ऊपर है। तो मेरे सबसे लिए है कि जी साफ़ पानी इस्तेमाल कर देना लोगों को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अबाउट 60% ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। तो हम सिंपल मेजर्स से हाथ सिर्फ धो लिया करें ना, सिर्फ हाथ सिर्फ धोने हाथ से, ही धो ले तो हाथ बहुत धोने चीज़ें से हैं। हर हाँ, कोई you're किसी right. चीज़ को इस्तेमाल करके आप हाथ धो के खाने से पहले हाथ धो लें, खाने के बाद इतनी हाथ सी धो लें। awareness, ये सिंपल सी हाँ, चीज़ है, simple इसमें सी ना कोई चीज़ है। खर्चा है, ना कोई पानी, ना कुछ है। तो वो कर लें, प्रिवेंटिव साइड पे चले जाएं, तो इंशाल्लाह हम जब बीमारियां रोक लेंगे तो फिर इंशाल्लाह। अस्पतालों में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह देयर विल बी अ टाइम कि हमारे भी अस्पताल खाली होंगे, जिससे हम बाहर के मुल्कों के बारे में सुनते हैं, इम्प्रेस होते हैं। लोग भी पाकिस्तान के बारे में सुनेंगे, इम्प्रेस होंगे, और इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा। और आप जैसे जो स्पेशल लीडर्स हैं, यू आर द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडस हॉस्पिटल माशाल्लाह, एंड इट्स बीन 16 years till 2007 कि it's a Karachi based, very well organized and running successfully in serving the humanity, and of course in Punjab it's completing its 10 years. Indus Hospital basically खाली कार्डिक इश्यूज़ को नहीं डील कर रहा, हार्ट सर्जरीज़ को, हार्ट इश्यूज़ को डील नहीं कर रहा, बल्कि बच्चों में जो कैंसर है, हर स्टेज के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हो आगे भी 4थी स्टेज पर भी है या किसी ऐसी स्टेज पर भी है कि उसके पास 3-4 दिन रह गए, तो वो उसको भी केटर कर रहा है इंडस हॉस्पिटल। सो यू गाइस कैन इमेजिन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि वो जो अर्ली स्टेज या इनिशियल स्टेज पे जो बच्चे आते हैं, जैसे प्री कार्सिनोमा हम कह देते हैं, उनको भी डील कर रहा, बहुत सक्सेसफुली कर रहा है। और इसके लिए इन्होंने प्रॉपरली प्लेग्राउंड एरियाज़, बच्चों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम रखा हुआ है आपके इर्द गिर्द। और अल्लाह न करे आप लोग के इर्द गिर्द भी कोई हो, या आप लोग के बीच में भी कोई हो, कोई ऐसी इशू आपको लगता है जो कि इंडस हॉस्पिटल से रेलिवेंट है, तो प्लीज़ यू गाइस कैन कम कॉन्टैक्ट एंड विजिट इंडस हॉस्पिटल। पर्ची फ्री है, 1 रुपया आप लोग का नहीं लगेगा। यू गाइस कैन मार्क आवर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर डॉक्टर अब्दुल बारी खान स्टेटमेंट कि इट्स जस्ट कम्प्लीटली फंडेड बेस्ड ऑन डोनेशंस, ज़कात एंड सदकात। आप लोग के ही दिए गए फंड से ये चल रहा है और आप लोग नहीं देते रहना है। और अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ यू गाइस कैन रेफर इट टू द इंडस हॉस्पिटल। इट्स वर्किंग इन पंजाब, ओवरऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में है। और मोबाइल कार्ड्स भी हैं, मोबाइल भी चल रहे हैं, सब हर कुछ चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड येस जस्ट स्टे ट्यून्ड रिगार्डिंग मिस्टर डॉक्टर अब्दुल बारी खान's upcoming contributions in serving the humanity. And of course, thank you sir for being here and telling us a lot about how we can deal with cardiac issues and why there are so many cardiac issues in young age nowadays. Whereas thank you guys for watching us today, and if you guys have any query, any question regarding our highly esteemed personality, or anything you guys want to know about Indus Hospital, or how to donate, or how to get connected with the concerned authorities, especially when we talk about Indus Hospital, you guys can freely ask me on the feedback session. And of course, do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual. Which are living till today. We will definitely catch up in the next episode. Bye bye.